Good evening, students. In last class, we have discussed regarding the diabetic mellitus. Okay. So, in endocrine system, in endocrine disorder, this is the last topic, diabetic mellitus. In previous classes, in 3 videos, I had explained in detail regarding the diabetes mellitus. So, you have to visit this all 3 videos. So, this is the 4th videos, the next class of the diabetes mellitus. So, once again, I would like to revise that diabetes mellitus means it is a metabolic disorder in which the hyperglycemia, it is one of the metabolic disorder. There is appearance of hyperglycemia. Because why hyperglycemia? Because of the absence of insulin, deficiency of insulin. Okay, insulin, the main functions of the insulin is the metabolism of carbohydrate. Okay, so that's why the deficiency of insulin that causes the hyperglycemia. Either the insulin is normal but the body cells are unable to make use of that insulin. So there are two conditions, either deficiency of insulin, either the body cells are unable to use the insulin. There are two conditions that causes the diabetes mellitus. Okay, it is one of the endocrine or metabolic disorder. Okay, three types of diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus, insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent means the totally absence of insulin or either the deficiency of insulin. And type 2 diabetes mellitus means the insulin secretion is either decreases or normal but the body cells are unable to make use of that. Okay, then the etiological factor we have already seen in the class first of diabetes mellitus. In class 2 diabetes mellitus, clinical symptoms are seen: polyuria, polyphagia, polydipsia, weight loss, wound healing delayed, microscopic disorder, macroscopic disorder, retinopathy. These are the complications. And in third videos, I had explained regarding the diagnostic evaluation, history, physical examination. Okay, HbA1c examination, GTT examination, glucose tolerance test, which is one of the important examination. Then fasting blood sugar examination, postprandial blood sugar examination, history collection. So these are all play an important role in the detection of the diabetes mellitus. And complications are, okay, complications like diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome. Okay, these are the complication of diabetes mellitus. Okay, in today's class we have discussed regarding the management of diabetes mellitus. Management. So what are the management measures we have to initiate for the treatment of diabetes mellitus? Okay, so there is no curable treatment for the diabetes mellitus. The diabetes mellitus is we should not cure, but that should be maintained. Okay, that should be maintained by the, so there are several steps for the maintenance of the diabetes mellitus. The first one is primary management, includes the diet management, exercise, diet management. First of all is diet management. Diet management. Second thing is exercise. Second thing is exercise. Okay. Third thing is anti-diabetic drugs. Anti-diabetic drugs. Okay. And fourth thing is insulin. Fourth thing is insulin. Okay. These are the 4 measures to apply for the diabetic patients. Okay, these are the 4 measures helpful for the to maintain the diabetes mellitus in the patients. Okay, first one is diet management. In diet management, the proper diet is very essential for the diabetic patients. Okay, frequent diet is very essential, and avoid the carbohydrate diet or avoid the sweet meal. स्वीट मील को अवॉइड करना है पेशेंट को. आइदर अवॉइड दी मोनोसैकराइड्स जो बोलते हैं हमने, वो मोनोसैकराइड्स को अवॉइड करना है. ओके, सो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डायबिटीज मेलिटस और प्रिवेंशन ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिया. सो डाइट इज वेरी एसेंशियल. एक्सेसिव हंग्री होता है पेशेंट को. सो एक्सेसिव हंग्री इन द डायबिटीज मेलिटस बिकॉज ऑफ द बॉडी सेल्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द carbohydrates. Carbohydrates is the main energy food. So that's why if for the diabetes mellitus patient, the frequent food is advised. So in food, in meal, so we should advise them to avoid the sweet. So this type of diet is very essential for the patient. This is by the diet, and avoid the monosaccharides. Okay, next is exercise. Exercise play an important role in the diabetes mellitus patients. Okay, because of the exercise, during exercise the body is able, or body is trying to utilize all the
वैरायटीज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट हो, जो प्रोटीन हो, फैट हो, जो भी हो, बॉडी सेल्स उस टाइम एक्टिव होके यूज करने में कोशिश करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हेवी एक्सरसाइज नहीं, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज. ऑलरेडी बॉडी सेल्स आर डिफ्रॉइड फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट से डिफ्रॉइड है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना, बट लिमिटेड एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल. ओके, नेक्स्ट important is anti-diabetic drugs. Okay, anti-diabetic drugs are plays an important role in the diabetes mellitus. Okay, so we have discussed regarding the anti-diabetic drugs. These anti-diabetic drugs are varieties of anti-diabetic drugs are available. Okay, बहुत सारे anti-diabetic drugs आता है. So कौन सा ड्रग्स किस तरीके से काम करता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंटी-डायबिटिक ड्रग्स, ओके, sulfonylureas. The first class of anti-diabetic drugs are sulfonylureas. Okay, sulfonylureas. First class of anti-diabetic drugs बोलते हैं. For example, okay, glyburide, glimepiride. Okay, glimepiride. Okay, this is the name of the drug, glimepiride and glyburide. Glimepiride and glyburide, these are the sulfonylureas. sulfonylureas क्लास का ड्रग्स है. sulfonylureas क्लास का ड्रग्स कौन सा है? glimepiride, glyburide. These are the anti-diabetic drugs. ये ड्रग्स क्या करते हैं? Okay, these drugs stimulate the beta cells of pancreas to synthesis of insulin. Okay, stimulate the beta cells of pancreas. Stimulate the beta cells of pancreas. Okay, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? पैंक्रियास. पैंक्रियास में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, दो सेल्स होता है. बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है. सो वो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है ये ड्रग्स. ये द ड्रग्स विच स्टिमुलेट द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास टू रिलीज द इंसुलिन. इंसुलिन क्यों चाहिए? द इंसुलिन इज हेल्प्स टू metabolize the carbohydrate. So that's why this class of drugs are called as sulfonylureas. For example, glimepiride, glyburide. Okay, glimepiride, glyburide ये ड्रग्स क्या काम का आता है? बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ये याद रखिए. दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स. ओके, फर्स्ट क्लास. देन सेकंड क्लास का ड्रग्स है. ओके, दैट इज द ओके थाइजोलिडीने. ओके, थाइजोलिडीने डियोन. ओके, थाइजोलिडीने डियोन. ओके, थाइजोलिडीने डियोन. ओके, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ डायबिटिस मेलिटस. एंटी डायबिटिक ड्रग्स है. को इसमें क्या होता है? The most common drugs used in this class of okay, rosiglitazone. Okay, rosiglitazone most commonly यूज करते हैं rosiglitazone. एंड नेक्स्ट दूसरा एक यूज करते हैं pioglitazone. Okay, rosiglitazone, pioglitazone, these are the classes of anti-diabetic drugs of the thiazolidinedino. Okay, thiazolidinedino. Okay, so ये ड्रग्स क्या करते हैं? Okay, these drugs are reduces the insulin resistance through the stimulation of reduces the insulin resistance. Okay, mechanism of action क्या करते हैं? Okay, these are okay, reduces the insulin reduce the insulin resistance. Okay, reduce the insulin resistance. जैसे अभी दिस इज द बॉडी सेल्स है. बॉडी सेल्स क्या करते हैं? अभी इंसुलिन आता है इधर. ओके, इंसुलिन जो आता है, इंसुलिन को बॉडी सेल्स रेजिस्ट करता है. इंसुलिन को बॉडी सेल्स अगर रेजिस्ट करते हैं, डायबिटीज मेलिटस होता है. ये ड्रग्स देने से क्या करते हैं? reduces the insulin resistance on the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंसुलिन सेल रेजिस्ट कर रहा है उसको सप्रेस करता है. मतलब इंसुलिन को बॉडी सेल्स यूज करने में मदद करता है. ओके, दिस reduces the insulin resistance through the stimulation of PPARS. by the stimulation of PPARS. PPARS is a receptors of the insulin. इंसुलिन का रिसेप्टर्स है PPARS.
ओके ये पीपीआरएस को स्टिमुलेट करते हैं, इंसुलिन को यूज करो, यूज ले लो आप इस तरह से। ओके कौन सा ड्रग्स है? ओके these are drugs are the pioglitazone and rosiglitazone. These are the classes of the thiazolidinedone. Okay these drugs are helps to stimulate the or helps to reduces the insulin resistance. इंसुलिन का जो रेजिस्ट कर रहा है बॉडी सेल्स उसको कम करता है, मतलब इंसुलिन को यूज करने में मदद करता है। ओके थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ पीपीआरएस। पीपीआरएस इज ए रिसेप्टर्स ऑफ द इंसुलिन ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर्स होता है। ओके पीपीआरएस मतलब पेरोक्सिसोन प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड। ओके पेरोक्सिसोम ओके पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव okay peroxisome proliferative activated receptors मतलब ये इंसुलिन का रिसेप्टर्स है, सेल मेम्ब्रेन का सेल के पास रहता है। ओके वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब इंसुलिन के यूज कर इस तरह से। दिस आर द सेकंड क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओके सेकंड क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स याद रख दीजिए। तो क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स आर वैरायटीज। फर्स्ट वन इज सल्फोनिलयूरेस, एग्जांपल भी बोला मैंने। सेकंड वन इज ओके थाइजोलिडिनोडिन। ओके सेकंड वन इज थाइजोलिडिनोडिन। थर्ड वन इज बिगिनाइड्स। ओके थर्ड क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर बिगिनाइड्स। बिगिनाइड्स बोलते हैं उसको हमने, बिगिनाइड। थर्ड क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर बिगिनाइड। ओके बिगिनाइड्स एग्जांपल में बताऊं, मोस्ट कॉमनली हर हॉस्पिटल में यूज करते हैं। सो एग्जांपल टैबलेट मेटफॉर्मिन। आप लोग देखा होगा मेटफॉर्मिन टैबलेट हर डायबिटिक पेशेंट के पास मोस्ट कॉमनली डॉक्टर ने एडवाइस करते हैं। हर पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट के पास एक ये ड्रग्स मिलता है। ये क्या करते हैं? बिगिनाइड क्लास ऑफ ड्रग्स है। ओके ये क्या करते हैं? ओके मेटफॉर्मिन एनहांस द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ओके इंसुलिन का इफेक्ट को एनहांस करते हैं। एनहांस द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इफेक्ट को एनहांस करते हैं, मतलब इंसुलिन का काम करने को स्टिमुलेट करते हैं। इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं। डिक्रीज द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। ओके डिक्रीजेस ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लिवर। लिवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन से कम करते हैं, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है। ओके क्योंकि लिवर ग्लूकोज को प्रोडक्शन करते रहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज प्रोडक्शन करते रहते हैं, लिवर का काम है वो तो करते रहते हैं, पर इंसुलिन के साथ बाइंड अप होके वो मेटाबोलाइज होना पड़ेगा, बट इंसुलिन नहीं है। इसके वजह से क्या करते हैं? लिवर को भी बोलते हैं, लिवर को इंसुलिन को ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करते हैं। लिवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन कम होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या होता है? कम आता है। एंड इंसुलिन लेवल का और इंसुलिन का काम को क्या करता है? इंसुलिन काम का एनहांसमेंट करता है। इंसुलिन काम का एनहांसमेंट करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस होने का चांसेस होता है। सो दिस क्लास ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड एज बिगिनाइड्स। एग्जांपल इज मेटफॉर्मिन। याद रख दीजिए बिगिनाइड्स, ओके थाइजोलिडिनोडिन, ओके एंड सल्फोनिलयूरेस। 3 क्लास ऑफ ड्रग्स हमने स्टडी किया। दीज आर द क्लासेस ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओके व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड गिव द 1 or 2 एग्जांपल्स विद ईच क्लास। ऐसा एग्जाम में पूछे तो इस तरीके से लिखना है। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ओके सो नेक्स्ट फोर्थ क्लास इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स फोर्थ क्लास का ड्रग्स आता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग्स। फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग्स अल्फा glucosidase inhibitors। okay अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स एग्जांपल है अकार्बोस एंड मिग्लिटोल ACR अकार्बस। okay these are the anti diabetic drugs। okay अल्फा मिग्लिटोल अकार्बस, okay एंटी
डायबिटिक ड्रग्स है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स है। ओके, ये क्या करते हैं, डिले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को डिले करते हैं। ओके, डिले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ओके, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को डिले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के डिले करने से क्या होता है, एंड डिले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ओके, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी धीरे से करते हैं और एब्सॉर्प्शन भी धीरे से करते हैं। सो धीरे से करने से क्या होता है, ओके, दिस हेल्प्स टू डिक्रीज दी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। ओके, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टमक में जाने के बाद, ओके, 2 घंटे में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होकर एब्सॉर्प्शन होता है। फिर एब्सॉर्प्शन होने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई मिलता है। ओके, ये ड्रग्स क्या करते हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये डाइजेशन भी डिले करते हैं, एब्सॉर्प्शन डिले करते हैं। एब्सॉर्प्शन डिले करने से क्या होता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का लेवल कम करने में मदद करता है। ओके, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को और एब्सॉर्प्शन को डिले करते हैं, कम करते हैं। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम दिखने में स्टार्ट होता है। ओके, दीज आर द 4th क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओके, इस तरीके से एंटी डायबिटिक ड्रग्स का 4 क्लासिफिकेशन है। ओके, सो ये चारों क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन से पहला, सो दिस 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर वेरी एसेंशियल and the next step phase of management is insulin. Okay, regarding insulin I would like to explain in the next class. Thank you very much.